Very good afternoon, everyone. We were doing chapter the prairies, the treeless grasslands. Prairies are mainly found in North America. These are the grasslands of North America. We have already done about it. So let's recapitulate this lesson. We have done that different grasslands are known by different names in different continents. Now, can you tell, write in the chat box, I will check your answers from the chat box. What do we call grasslands in South America? Write in the chat box. South America may, yes, Bhumika Mani. Good. She has given the response. I am waiting for all the students. Yes, everybody must give the response. सब बच्चे response दिया करो, चाहे गलत आ जाए कोई बात नहीं. Yes, Pampas is the correct answer. Okay, next question is, downs are found in which continent? Write in the chat box. Downs are found in which continent? Very good. मिसबा आपके स्पेलिंग रॉन्ग हो गए बेटे. गुड. ऑस्ट्रेलिया का ए स्मॉल डाल रहे हैं कुछ बच्चे. इट शुड बी इन कैपिटल. ओके, नेक्स्ट इज prairies are stretched from which two countries? From dash to dash. Prairies are stretched from dash to dash. Yes. Yes. USA to Canada. USA के टेक्सास से लेके कनाडा के सस्कुचुअन तक फैले हुए हैं. ओके, यूएसए से कनाडा तक. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what type of weather is found in prairies? What type of weather is found in prairies? Moderate weather जो है, that is found in prairies. Okay. Can you tell me name of the main river? Can you tell me the name of the two main rivers of prairies? Write in the chat box. Name of the two rivers which are flowing in prairies. Tony Batra, what do you want? क्या मैं share करूं? Google form तो I have shared. Once again I am sharing. Yes, Mississippi and Missouri. भूमिका स्पेलिंग रॉन्ग है बच्चे. मिसिसिपी की स्पेलिंग रॉन्ग है. चेक द स्पेलिंग्स. Mississippi and Missouri are the two rivers, main rivers which flow in this region. Next is, name the main crop grown over here. One crop, main. You are to write, name the main crop which is grown over there. Very good. सृष्टि, अब तो बेटे नेक्स्ट. Yes. Very few students are giving answer. Dhruvika Verma, barley is grown, but main crop मैंने पूछा है, only one main crop. तो its answer will be wheat.
wheat is the main crop grown here. Okay, those who are writing barley, corn, वो भी है, लेकिन wheat जो है ना वो ज्यादा उगाई जाती है यहाँ पे, इसीलिए इसको wheat bowl of the world भी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. Okay, so name the animal which is endangered and found in North America. एनिमल जो अब एक्सटिंक्ट होने वाला है और नॉर्थ अमेरिका में मिलता है. यस, दैट इज बाइसन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकैपिचुलेशन. आई थिंक लेसन इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग्स which natural resources. Natural resources we will do. Natural resources क्या क्या मीनिंग होता है? Can anyone write in the chat box? What do you mean by natural resources? Yajat, write in the chat box, or let me unmute you. Speak, Yajat. मैम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं और नेचर वो हमें देती है. Yes, the things which we get from nature. ठीक है, it can be rain, water, sunlight और crops या plants जो हम ग्रो करते हैं, even minerals जो हमें mines से मिलते हैं, तो ये सारे natural resources आते हैं. Clear? So now let's learn about natural resources. Prairies have great reserves of petroleum and natural gas. Prairies में बहुत सारे नेचुरल रिजर्व्स है पेट्रोलियम के. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ पे मिलती है और इस वजह से यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है. ऑयल रिफाइनरीज क्या होती हैं? जहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, तो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं और ऑयल रिफाइनरीज भी यहाँ पे मिलती हैं ताकि उसको रिफाइन करके अलग अलग यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए. कोल इज माइंड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज. इसके साथ साथ कोयला जो होता है ना, ब्लैक कलर का कोयला, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है. साथ में एक यहाँ की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं. ये रीजन बहुत ही विंडी है, जिस कारण से विंड मिल्स इंस्टॉल की गई हैं, विंड मिल्स बनाई गई है ताकि उसमें से एनर्जी जनरेट की जा सके. विंड मिल्स का ये देखो डायग्राम, ये पिक्चर देखो, सॉरी. विंड मिल्स जो हैं बहुत सारी इंस्टॉल की जाती हैं. जब भी हवा चलती है, ये टरबाइन जो है ये घूमने लग जाती है. ये टरबाइन फैन के जैसे होती है. कई बार तेज आंधी आती है तो हमारे घरों के फैन भी अपने आप चलने लग जाती है ना, तो वो विंड से चलते हैं. तो विंड मिल्स में क्या होता है, ये टरबाइंस हवा के साथ साथ चलती हैं और एनर्जी जनरेट करती हैं और वो पावर मेन सोर्स बन जाता है पावर का. यूएसए में विंड एनर्जी, विंड मिल्स जो बनाते हैं विंड एनर्जी, वो पावर के लिए यूज होती है. आजकल हमारे यहाँ पे पंजाब में भी सोलर एनर्जी बहुत यूज होने लग गई है. वैसे ही कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी जो है वो बहुत यूज होती है. तो यूएसए में भी मेन सोर्स है पावर का, वो है विंड मिल्स, जो कि विंड एनर्जी को पावर में चेंज करती है. देन कम्स इकोनॉमी. मेन ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन इज फार्मिंग. इस रीजन का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग. लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. वीट, बार्ले, कॉर्न,
oats, rye, cotton and maize are grown in large quantities. Large quantities में इनको grow किया जाता है. There are large wheat farms in this region. Because of its very large wheat production, the region is called the wheat bowl of the world. यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में wheat प्रोड्यूस की जाती है, इसीलिए इसको wheat bowl of the world कहा जाता है. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद फिर भी बहुत wheat बच जाती है, जिसको ये एक्सपोर्ट कर देती है. एक्सपोर्ट करना मतलब दूसरे देशों में भेज देना. ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वीट प्रोड्यूस होती है. फार्म्स बहुत बड़े बड़े हैं. हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, बहुत छोटे छोटे फार्म्स हैं. लेकिन प्रेरीज में बहुत बिग फार्म्स हैं. ज़्यादातर काम जो है मशीनों से किया जाता है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है. और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ये वीट को दूसरे देशों में भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो इस कारण से दूसरे देशों में भी वीट जो है प्रेरीज प्रोवाइड करते हैं. तो इसीलिए प्रेरीज को क्या कहा जाता है, वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड. सारी दुनिया के लिए एक तरह से ये वीट प्रोड्यूस करती है. The western part of prairies are hilly and less fertile. कल मैंने आपको बताया था ईस्टर्न साइड्स में जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर था, टॉल ग्रासेस होती थी, फिर बीच में स्मॉल मिक्स ग्रासेस भी होती थी. फिर तभी मैंने बताया था कि वेस्ट साइड जो है वो हिली है. हिली है और इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, कम फर्टाइल है. फर्टाइल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है. तो इस एरिया को भी वो फिर यूज करते हैं एनिमल रियरिंग के लिए. ठीक है, इस एरिया को भी वो एनिमल रियरिंग के लिए. एनिमल रियरिंग क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू. एनिमल रियरिंग मतलब एनिमल्स को पालना, एनिमल्स की लुक आफ्टर करना, जिसको हिंदी में पशुपालन कहते हैं. पशुओं को पालना. बड़े बड़े लैंड के स्ट्रेचेस है, बहुत बड़े बड़े खुले मैदान हैं जहाँ पर कैटल को रेज किया जाता है. कैटल को रेज करना मतलब कैटल को पालना. ठीक है, पीपल रेज कैटल एंड हॉर्सेस. लोग पशुओं को पालते हैं. और यहाँ पर बिग कमर्शियल फार्म्स हैं. कमर्शियल फार्म्स हैं जिसको रेंचेस कहा जाता है. yesterday one student asked me about the ranches. तो ranches are the commercial farms where animals are reared. animals को पाला जाता है. ऐसे कमर्शियल फार्म्स जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है. अब एनिमल्स को क्यों पालते हैं हम लोग? Can anyone tell? Write in the chat box. What is the need of rearing animals? Better write in the chat box. I'm not able to see you because my screen is there in front of me. Yes, very good. Misbah has written for meat, milk and milk products. Very good. Clap for Misbah. एनिमल्स को क्यों पालते हैं? ताकि उनसे मिल्क मिल सके. मिल्क से आगे फिर बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं और साथ ही साथ मीट भी मिलता है. एनिमल्स का मीट लोग खाते हैं. तो इसीलिए एनिमल को रियर किया जाता है, एनिमल को पाला जाता है. तो ये कमर्शियल फार्म्स जहाँ पे एनिमल्स को पाला जाता है, एनिमल्स की लुक आफ्टर की जाती है, उनको कहते हैं रेंचेस. क्लियर? एक फैक्ट है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट रेंचेस. काउबॉय कल्चर. अब काउबॉय कल्चर आपने ना मूवीज में देखा होगा, क्योंकि ये प्रेरीज है ना, प्रेरीज में काउबॉय कल्चर है. काउबॉयज क्या होते हैं,
हॉर्स पे बैठने वाले, हेयर पिक्चर इज ऑल्सो गिवन, हॉर्स पे बैठ करके हैट पहनी होती है, रग्ड जीन्स होती है, टी शर्ट पहन करके ये घोड़े पर बैठ करके एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं, चेक रखते हैं कि कोई एनिमल जो है वो एक मतलब ग्रुप में से अलग ना हो जाए, क्योंकि सारा हर्ड जो है, सारा कैटल है ना, ग्रुप में चलते हैं, तो उस ग्रुप को मॉनिटर करते हैं ये काउबॉयज। वो प्रेरीज में काउबॉयज पाए जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इतने बड़े बड़े रेंचेस में एनिमल्स को चेक रखते हैं। एनिमल्स वहाँ पे घास खाते हैं और फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सब का ध्यान रखें और इवनिंग टाइम में उनको वापस उनके जगह पे पहुंचाएं। तो टिपिकल जो रग बॉय होते हैं, काउबॉय होते हैं, उनकी रग लुक होती है, वो टी शर्ट, शर्ट, ब्लू जीन्स या हैट पहनते हैं, लेदर बेल्ट, बहुत बड़े बक्कल वाली जो होती है लेदर बेल्ट पहनते हैं, और बड़े बड़े शूज होते हैं। ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, मैनी इंग्लिश मूवीज हैव बीन मेड ऑन काउबॉयज। क्लियर? नेक्स्ट, काउज आर रियर्ड फॉर बीफ। बीफ का मतलब होता है, can anyone tell? Write in the chat box. Beef means cow meat. Yes, Japneet Kaur has written meat of the cow. Yes, cow meat जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत लोग खाते हैं। तो काउ मीट जिसको हम बीफ कहते हैं, ये एक्सपोर्ट किया जाता है और दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में इसको हम ये लोग सेल करते हैं। शिकागो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स। स्लॉटरिंग एनिमल्स मतलब एनिमल्स को मारना, एनिमल्स को कत्ल करना। क्लियर? शिकागो जो प्लेस है वहाँ पर एनिमल स्लॉटरिंग की जाती है, वहाँ पर एनिमल्स के मीट को अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता है। साथ में डेयरी फार्म्स भी हैं। जो डेयरी फार्म्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क, डेयरी फार्म्स मतलब जहाँ पे मिल्क का काम होता है, डेयरी से दूध लेने जाते हैं ना, तो डेयरी यानी कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वहाँ पर डेयरी फार्म्स भी बहुत बड़े बड़े हैं और वो सारे मैकेनाइज्ड हैं, मीन्स बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, सारा काम मशीनें ही करती है। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, मिल्किंग हो रही है काउस की, वो भी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन्स के साथ सारे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे काउस का मिल्क ले सके पर्सन्स, तो वो मशीन्स लगा देते हैं और मशीन्स से अपने आप काउस की मिल्किंग हो जाती है। तो सारा काम वहाँ पे मशीनें करती हैं, क्योंकि देयर आर सो मैनी cows, number of cows is too much. Agriculture is also done with the modern machines. Agriculture भी modern machines के साथ होती है। Combined harvester. What do you mean by combined harvester? एक मशीन होती है combined harvester. It's very important. Combined harvester से सारा एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। प्लोइंग होती है, यानी कि खेत को तैयार करना ताकि उसके अंदर क्रॉप्स ग्रो कर सके। सोइंग ऑफ सीड्स, प्लोइंग हो गई, उसके बाद सीड्स को सो किया जाता है, सीड्स को बोया जाता है। हार्वेस्टिंग होती है, जब फसल बन के तैयार हो जाती है उसको काट दिया जाता है। थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग मतलब ग्रेन्स को स्टॉक में से अलग करना, क्योंकि जब क्रॉप होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े सिट्टे होते हैं,
तो उसमें से दानों को अलग करना उसको कहते हैं थ्रेशिंग. एंड विनोइंग, विनोइंग मतलब हस्क को फूड में से रिमूव करना. ये पहले लोग हवा से करते थे. हवा जब चलती थी तो हस्क जो था वो बहुत हल्का होता था, वो निकल जाता था, हवा से उड़ जाता था और नीचे दाने गिर जाते थे. उसको कहते हैं विनोइंग. लेकिन ये सारे काम हम लोग मैनुअल करते हैं. इंडिया में ज़्यादातर अभी भी फार्मर्स जो हैं ये खुद हैंड से करते हैं. लेकिन प्रेरीज में ये सारे काम जो है मशीनों के जरिए होते हैं, जिसको कंबाइंड हार्वेस्टर कहते हैं. और ये सारे काम जो है मशीन्स कर देती है. एक ही मशीन है जो कंबाइंड हार्वेस्टर है, सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करती है. और इससे क्या होता है, सारा काम बहुत जल्दी भी हो जाता है और कम लेबर, लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. सारा काम मशीन के थ्रू हो जाता है और इस तरह से काम जो है जल्दी हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स जब हम रेडी हो जाते हैं तो इनको स्टोर किया जाता है. फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड विद मशीन्स. मशीन्स के साथ ही उनको स्टोर किया जाता है. स्टोरेज टावर्स के साथ, बड़े बड़े स्टोरेज टावर होते हैं जिसको साइलोज कहा जाता है. हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ साइलो. ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइलो. तो बड़े बड़े टावर्स होते हैं जो कि फार्म के अंदर ही होते हैं. इसके अंदर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है. तो इस तरह से टावर या पिट भी होती है, फार्म के अंदर ही बनाई जाती है, जिसमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है. और क्योंकि मशीन्स ने अब ह्यूमन बींग्स की जगह ले ली है तो इसलिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा काम हो जाता है, सारा एग्रीकल्चर का काम. ये देखो पिक्चर में भी है, कंबाइंड हार्वेस्टर से सारा काम बड़े इजीली हो जाता है और ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए प्रेरीज में जो है बहुत कम लोग रहते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और वो स्कैटर्ड है. स्कैटर्ड का मतलब है इकट्ठे नहीं रहते हैं, कोई दूर दूर तक रहते हैं. दूर कोई इधर रहता है, कोई थोड़े दूर रहेगा, तो दे आर स्कैटर्ड. फार्मर्स बहुत रिच हैं और वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ इफ you have any doubt, you can clear your doubts. Otherwise, we are to do the back exercise also. Okay, Navdeep Kaur. Navdeep Kaur, do you want to ask something? You have raised hand, Betty. Unmute yourself. I think network problem is there at her side. Shivansh. Ma'am, I am unmuted. Yajat, do you want to ask? Yes, ma'am. Yes. मैम मुझे ये सीलो नहीं समझ आया. सिलो, Silos? साइलो. Okay, just a minute, I will tell you. साइलोस जो होती है ना, जैसे हम अपने घरों में वीट को स्टोर करने के लिए ड्रम रखे होंगे, आजकल भी हमारे यहाँ पर पंजाब में ना जब कनक मिलती है तो वो कनक को ड्रम्स में, बड़े बड़े ड्रम्स में स्टोर करके रख लेते हैं. वो तो एक फैमिली रखती है ना. तो साइलोस जो होते हैं वो बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी पिट्स होती हैं जिसके अंदर फार्मर्स स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को और उन्हीं साइलोस को फिर आगे बेच दिया जाता है. ठीक है, ताकि वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जा सके. क्लियर? बैक एक्सरसाइज करें. एंटीलोप्स जो है बेटी वो दैट इज द एनिमल फाउंड हियर. क्लियर? साइड बाय साइड.
So let's do the back exercise given on page number 60. B part is name the following. You are to write 2 rivers in prairies. 2 rivers के Kavya, I will ask you a doubt later on, bete. Just complete this back exercise. We have time, we will do that work later. Okay. So first 2 rivers are B part, name the following 2 rivers in. इसके स्पेलिंग्स जो है ना बेटी बहुत ध्यान से लिखना. If it is not clear from the board, then you must note down from your book. Book में भी है. Otherwise, I will share PDF back exercise later on. So write the spellings very carefully. First is Mississippi. Mississippi and Missouri. Mississippi and Missouri. Second is सिर्फ 1 ही है. सेकेंड ब्लैंक में हम कुछ नहीं लिखेंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन अफ्रीका. अफ्रीका के ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं? वेल्ड. So you will not write anything in the other blank, leave it. Third is major crops in prairies. Next is major animals found in prairies. Antelope and bison. Next again, there will be only 1 blank. Large commercial farms where cattle are breed की second form है bred. Ranches. Next 3 blanks are required. 3 cities located in prairies. कुछ भी आप लिख सकते हो. Texas, North Dakota, South Dakota. So I am writing Montana. North Dakota, South Dakota, and Montana. These were the easy spellings, so I have chosen these. You can write any other also from your book. Okay. Next is match the columns. You are to put the numbers. C part जो है, here you are to put numbers this way. First one is Australia. Australia is matched with downs. Then is Asia. Asia is matched with steppies. Then Africa is matched with veld. South America pampas. North America prairies. तो इसके साथ मैच करके
Sequence will be 3, 4, 5, 2, 1. Is it clear? Is it clear? Next is B part, blanks. First blank is Texas और इसी का दूसरा ब्लैंक है, वहां पे आप लिखोगे कनाडा। फर्स्ट ब्लैंक में टेक्सास, सेकंड ब्लैंक में कनाडा, थर्ड इज सेकंड ब्लैंक, सेकंड नंबर पे बाइसन। Bison and antelopes are the two main animals found in prairies. Third one is, because of its very large wheat production, the region is called wheat bowl of the world. Wheat bowl of the world. Huge machines called combined harvester, combined harvester, इसकी स्पेलिंग चेक करना आ जाए यहाँ पे। Combined harvester. Okay. Fifth one is silos is the tower or pit on a farm used to store grain. Silo. Make it silo because they have written in singular. So this is the back exercise. Now let me ask about your doubts. If you have any doubt, you can raise your hand so that I can ask your doubts.